To all of you. On behalf of CI and on my personal behalf, I extend a very warm welcome to all of you at the press conference on Kumbh Mela 2019. At the outset, I take immense pleasure in welcoming Shri Rajesh Agarwal, Honorable Minister of Finance, Government of Uttar Pradesh. It is indeed encouraging to be part of this vital initiative of the state government. Firstly, I would like to congratulate the UP government for its various initiatives to foster inclusive growth in the state. The UP Investors Summit held earlier this year, wherein CIA partnered the state government, was a testimony of the state government's continuous efforts to bring in an overall development in Uttar Pradesh. Many of you would recall that the UP Investors Summit attracted a lot of people from our region also to go to Lucknow. UP is one of the most favored states for tourists in India, with a consistent ranking amongst the top 3 states in terms of both domestic and foreign tourist visits. You'll all be very glad to know, out of the 3 states which get the maximum tourists in country, UP is one of them. Tourism industry has a significant contribution to the state's economic growth. Being the cradle of the great and oldest civilization of the country, UP offers a palette of diverse experiences for the tourists. One of the activities, may I request you all to know, please settle down. One of the activities that has positioned UP on the global tourism landscape is the world-renowned Kumbh Mela. Friends, the key thread which binds all of us together is faith. The Kumbh is a symbol of peace and harmony amongst all human beings. The Kumbh Mela has been inscribed on the list of intangible cultural heritage of humanity by UNESCO in 2017. This reflects the significance of this festival worldwide. UP government has envisioned Divya and Bhavya Kumbh, scheduled from January 15 to March 4 in the coming year at Prayagraj. Kumbh at Prayagraj encapsulates the science of astronomy, astrology, spirituality, ritualistic traditions, social and cultural customs, and practices, making it extremely rich in knowledge. I am sure it will be an unforgettable pilgrimage experience to crores of devotees visiting the Kumbh Mela. I understand that the state government is blending the grand traditions of Kumbh with the deployment of modern techniques and solutions so that the Kalpavasis, spiritual gurus, dignitaries, foreign visitors, and the pilgrims have a life-emancipating experience during their visit to Prayagraj. To personally extend an invitation to the people of Chandigarh, we have amongst us today Shri Rajesh Agarwal, Honorable Minister of Finance, Government of Uttar Pradesh. मित्रों, बंधुओं, ये जो कुंभ मेले की सारी जो प्रयास किया जा रहा है, एक बारी क्योंकि हम कुंभ की बात कर रहे हैं तो अपनी भाषा में करने में बहुत आनंद आएगा। ये एक बहुत अलौकिक एक्सपीरियंस होगा। आई थिंक इट विल बी अ वेरी आप में से कुछ लोगों ने शायद कुंभ को एक्सपीरियंस किया है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने किया है। एंड अगर आप लोग कभी नेशनल ज्योग्राफिक में जाके देखें जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई है कुंभ के ऊपर, इट्स एन आई ओपनिंग डॉक्यूमेंट्री। आई मीन यू कैन नॉट फैथम, आप शायद अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितने मैसिव स्केल पे, और इसमें कितनी खुशी, अगर कोई बच्चा भी वहाँ गुम हो जाए तो वो भी इतना वहाँ तक भी सोचा हुआ है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे लॉजिस्टिक. So it's like an industry, it's like a huge mega factory. That little 2 weeks, I think, is worth learning. Do you know that many people from other countries come to study the Kumbh Mela? That how do you organize such a massive affair? What could be so more beautiful that the Finance Minister of Uttar Pradesh is here personally? It also speaks at how much importance a government is giving to tourism. कितने लोगों का उन दिनों में अपना व्यवसाय चलेगा, कितने के लोगों की रोजी रोटी बनेगी, कितने लोगों के वहाँ पे वो एक इकोनॉमिक सर्कल बनेगा. आई थिंक इनकी विजिट से मुझे ये लग रहा है एज अ चेयरमैन, पास्ट चेयरमैन, मैं ये महसूस करता हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहब ने यूपी के कितनी अहमियत दी, कितनी इसको इम्पोर्टेंस दी कि उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जाएंगे इसके न्योता को लेके कि वो यहाँ आए. इससे पहले कि मैं उनको आमंत्रित करूँ कि वो यहाँ आके आपको संबोधन करें, एड्रेस करें, एक छोटी सी फिल्म है जो पहले आएगी.
बहुत स्वागत है बंधुओं। नववर्ष की जो आहट दे रहा है और ऐसा नववर्ष जिस हेतु मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ वो आध्यात्मिक दृष्टि से कुंभ। अभी जो छोटा सा आपने वृत्तचित्र भी देखा, अगर मैं कहूँ आध्यात्मिक रूप में, तो भगवान ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना और प्रथम यज्ञ जब किया तो वो स्थान प्रयागराज था। उस प्रयागराज से जहां सृष्टि का प्रारंभ हुआ, जहां पर 3 नदियां उनका संगम और उसके बाद गंगा का प्रवाह, तीनों आत्मसात होकर एक होकर ऐसी पवित्र नगरी। तो प्रत्येक 6 वर्ष, यूं तो कुंभ जो है वो 12 वर्ष में आता है, लेकिन अर्ध कुंभ के रूप में 6 वर्ष में इलाहाबाद। तो हमारी विरासत, हम अपनी सनातन संस्कृति को कैसे, जो हमारे दूर थी, जिसके लिए हम लोग सामान्य रूप से नहीं जान पा रहे थे, इसको जनवाने का प्रयास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी नाथ जी ने इसको मन में संकल्प लेकर प्रारंभ किया। आशीर्वाद दिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने स्वयं वहां उपस्थित होकर गंगा के तट पर उसका पूजन करके इसको प्रारंभ किया था। मैं आपके बीच में अधिक कुछ न कहकर इतना जरूर कहना चाहूंगा कि भारतवर्ष में 4 स्थानों के ऊपर प्रत्येक 12 वर्ष में एक कुंभ होता है। एक हरिद्वार में, एक उज्जैन में, एक नासिक में और एक इलाहाबाद में। जब देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ था और देवता जो थे वो अमृत कलश लेकर जब चले थे, तो कहा जाता है कुछ बूंदें गिरी थी अमृत की। ये अमृत की जो बूंदें गिरी थी, ये वो 4 स्थान हैं। और इसीलिए प्रयागराज, चूंकि भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के बाद जब पहला यज्ञ किया था, तो ये प्रयागराज के अंदर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसमें लगभग 4300 करोड़ रुपए का अब तक व्यय किया है, 4300 करोड़ रुपए का। इसमें भारत सरकार ने भी अपना सहयोग लगभग 1200 करोड़ रुपए का दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जैसा आपने वृत्तचित्र में देखा कि लगभग 10 और 9 ऊपरगामी पुल, 6 अंडरपास, सड़कों का जाल, हवाई अड्डे का विस्तार, अस्पताल का विस्तार, यूं क्योंकि लोग आएंगे, हमने 10,000 से ज्यादा लोगों के आने की अपेक्षा रखी है। क्योंकि कुंभ हमारी संस्कृति का जो है वो एकमात्र स्वरूप है। 10 करोड़ लोग, सॉरी, मैं कहीं खो गया एकदम से। 10 करोड़ लोगों के आने की अपेक्षा हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर रखी है, और उसके लिए विस्तार से हमने इसकी व्यवस्था भी की है। लगभग 2400 हेक्टेयर जमीन में इसको विस्तार दिया है। 24 सेक्टर्स में इसको बांटकर इसकी व्यूह रचना की है। लगभग जो है वो हमने एक 5000 से ज्यादा यहाँ पर जो है वो टेंटेज की व्यवस्था किया है, जिसके अंदर जो है 20,000 लोगों के रहने की एक व्यवस्था है। 10,000 के आसपास एक क्षमता का जो है वो टेंट और किया है, जिसमें सामान्य लोग रह सकते हैं। हमने जो है वो लगभग 196 देश वहाँ से यहाँ पर जो है वो प्रतिनिधियों के आने की संभावनाएं पूरी तरह से व्यक्त की गई हैं। ऐसा 5,000 से अधिक जो प्रवासी भारतीय हैं, वे भी यहाँ पर आने की उनकी जो है
वो सहमति प्राप्त हो चुकी है। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में, ऊर्जा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हमने काम किया है। बिजली की वहाँ पर अधिकांश व्यवस्था की है। 1,22,000 से अधिक वहाँ पर शौचालयों का निर्माण अब तक किया जा चुका है। क्योंकि इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं, अधिकांश में ये होता है कि कार्यक्रम के पश्चात वहाँ पर गंदगी रह जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश कि फिर गंदगी नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने बड़ी लगन के साथ वहाँ पर इसके लिए जो है वो लगभग 20,000 डस्टबिन का जो है वो व्यवस्था करवाई है। ठोस प्रबंधन के लिए 140 टिपर और 40 कॉम्पैक्टर्स ऐसा करके जो है वो बनाया गया है। मैंने जो आवास की व्यवस्था में कहा है, तो आवास में भी 5,000 स्विस कॉटेज का जो है वो विशेष रूप से जो है वो निर्माण किया गया है। और ऐसे 10 सुपर लग्जरी कॉटेजेस का भी जो है वो वहाँ पर निर्माण हुआ है। हमने वहाँ पर जो है वो फेरी की भी व्यवस्था की है। 5 स्थानों पर जेटी और फेरी जो है वो वहाँ पर चलेंगे, जिससे मूवमेंट जो है वो आसान हो सके, और परिणाम उसका जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हमने यातायात के कंट्रोल के लिए लगभग 1,000 कैमरास की वहाँ पर व्यवस्था की है। वहाँ पर जो है वीडियो एनालिटिकल्स इस प्रकार की भी व्यवस्था जो है वो की है। बैंकिंग है, टेलीकॉम्स है, खाद्य आपूर्ति है, दूध आपूर्ति है, ये सारी चीज़ों की व्यवस्था जो है वो वहाँ पर किया गया है। मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी कहना चाहूँगा कि रिवर फ्रंट और 7 घाटों का भी विस्तार वहाँ पर करके, माने जो लोग आएंगे तो घाट की बहुत अच्छी व्यवस्था, ऐसे 7 घाट उनकी भी बहुत अच्छी व्यवस्था जो है वो वहाँ पर बनाई गई। बंधु, इसके पीछे एकमात्र लक्ष्य था कि ये जो हमारी संस्कृति है जो पुष्पित और पल्लवित हुई है उत्तर प्रदेश में, सचमुच में उत्तर प्रदेश अपने में एक अनोखा प्रदेश, जहाँ पर अगर भगवान राम की जन्मभूमि जो है वो अयोध्या है, तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि जो है वो मथुरा है, और काशी में तो हम जानते हैं कि भगवान शिव जो है वो साक्षात विराज है। तो ऐसे पुण्य उत्तर प्रदेश के अंदर, उस पुण्य भूमि के ऊपर ये कुंभ का होना, और इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये तय किया कि पूरे भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश का प्रत्येक मंत्री हर स्टेट में जाकर वहाँ के महामहिम, वहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री, वहाँ के सभी साधु सन्यासी, आबाल वृद्ध, नर नारी वहाँ पर उपस्थित हों, और इस एक वातावरण जिसको कहा जाए कि संपूर्ण विश्व के दर्शन वहाँ पर हो सकते हैं, ऐसे एक स्थान पर आना, मैं आप सबसे भी आग्रह और निवेदन करता हूँ कि जैसा अभी आपके बीच में अध्यक्ष जी ने कहा कि आइए कुंभ में एक बार अवश्य पधारें। हर प्रकार की सुविधाओं से युक्त ये इस बार का कुंभ निश्चित रूप से अपने में विलक्षण होगा, और सांस्कृतिक एक धरोहर की, माने वहाँ पर किस तरह से पेंटिंग्स किया गया है, पूरा प्रयागराज इस समय जो है उस संस्कृति के लिए जो है वो दिखा रहा है, जो हमारा पूर्व काल है, वो सब चीज़ें देखने को आपको प्राप्त होंगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपका और विशेषकर श्रीमान मोहन साहब का भी जो है वो बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।